Okay, before starting, I would like to summarize whatever we have studied till now. So, who is going to tell me what we have studied till now? Have you revised? Shivam, Kirti, Rishita? Yes, sir. तो समराइज करके बताओ शॉर्ट में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने कहाँ तक और क्या क्या पढ़ लिया है. Sir, it was a time of 1774 when Louis XVI ascended the throne. Sir, he was married to Marie Antoinette, and when he ascended the throne, he found an empty treasury. This was because that France was helping 13 American colonies to gain independence from Britain. So this was one reason, and also the maintenance of the palace and the maintenance of the army added to these costs. Hmm. Sir, so Taxes, crisis. yes, sir. Sir, there was at that time there were three estates, a division of people in three estates. So the first estate was clergy, and uh, Hmm. second was nobility, and third were a third estate. Third estate was angry. Then The first two estates enjoyed certain rights by birth, certain hmm. privileges by birth, but the third estate did not get any. So the first and second estate did not have to pay the tax, but only the third estate had to pay the tax. So the third estate made up of 90% of the population, and so they had only to pay the tax, and they were very poor. After some time in 1715 to 1789, the population rose around 5 to 8, 7 million in very few years. So it was, uh, What happened in 1789? sir, because the population rose, there was a rapid increase for the demand of bread and other food supplies. But the productions of the country could not. Um, 28 million people, Yes, sir. right? Yes, sir. डिमांड को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे सर. सो the rise in the prices and this not Basic needs. basic needs और ये सारी values को endanger हो गया था सर. Right. Or one word I used. What was that word? कौन सा crisis था? क्या था? Subsistence crisis. Subsistence crisis. What is subsistence crisis? Sir, a situation in which the basic means of livelihood are endangered. Right. है ना? And then what happened? Or what happened on 14th July? Rishita, tell me Sir, what happened on 14th July. And destroyed what? Bastille. Versatile. Bastille. Okay. Then what happened? Hmm. रिवोल्टिंग पीपल ने फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को भी टैक्स के लिए वो कर. The first Yes, and second estate also National had to give the Assembly. tax after this attack. Revolting people rolled. है ना?
आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा, है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली कैसे बनी? 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट में एक नेशनल असेंबली फॉर्म 20 जून 1789, राइट। तो इसमें कौन कौन से थे, कौन से मेंबर थे, किस स्टेट के मेंबर थे? थर्ड थर्ड स्टेट Third स्टेट एंड के सम थे पीपल और ऑफ कुछ फर्स्ट एंड सेकंड लीडर स्टेट भी टू। थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के भी जो सपोर्टिव थे, जो, ठीक है, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हम थर्ड स्टेट की हेल्प करेंगे, वो लोग थे इसमें। तो टेल मी द नेम ऑफ वन और टू पीपल। सर मीरा मीरा, ओके। चलो, तो फिर नेशनल असेंबली हमारी फाउंड हो गई। नेशनल असेंबली के हमने कुछ क्या पढ़े थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, राइट। डिक्लेरेशंस क्या ऑफ क्या ह्यूमन राइट्स राइट, ऑफ मैन। राइट, है ना। तो कौन कौन से राइट थे? इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ, ओके। तो पावर किसके हाथ में थी? सर जो पावर थी वो डिवाइड हो गई थी। राइट, पावर डिवाइड हो गई थी, लेकिन पावर हाथ में थी नेशनल असेंबली के। जो रूल जो बनाता था, कौन बनाता था? नेशनल असेंबली। और रूल किसके द्वारा बनाए जाते थे तीनों में से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, राइट। तो उनके द्वारा रूल्स बनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि यहाँ तक हो गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, सब हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि जो बाकी के किंग्स थे, है ना, बाकी के जो किंग्स थे, उन्होंने सोचा यार लुइस तो गया, है ना, लुइस तो पूरी तरह से नेशनल असेंबली के कब्जे में है ना, और बाकी के लोग भी देखेंगे, हमारे यहाँ की प्रजा भी देखेगी कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी ये रेवोल्यूशन चालू कर देंगे, है ना, दे विल स्टार्ट रिवोल्टिंग, है ना। तो फिर लुइस ने क्या किया, लुइस भी तो घेरा ही हुआ था, उसको भी तो नहीं पसंद आ रहा था ना कुछ, तो उसने सीक्रेटली क्या किया, सीक्रेटली उसने और कहाँ पर चला गया? गया था। प्रशिया पे, रशिया। सीक्रेटली उसने प्रशिया गया, ठीक है, और नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया किंग ऑफ प्रशिया से, है ना। सीक्रेटली उसने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया विद द किंग ऑफ प्रशिया। ही क्यों गया? हाँ, क्योंकि जो क्वीन थी वो कहाँ से थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से थी। तो ऑस्ट्रिया प्रशिया के साथ ही उसने स्टार्ट किया पहले, है ना। तो सीक्रेटली इन लोग ने ये चालू कर दिया कि चलो ये जो किंग्स लोग हैं प्रशिया के, ऑस्ट्रिया के, और ये लुइस लुइस 16, इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि चलो हम कुछ करेंगे, है ना, कि जो नेशनल असेंबली है और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो रिवोल्ट करना ना स्टार्ट कर दें, नहीं तो ये तो पूरी मोनार्की खत्म हो जाएगी, राइट। लेकिन इसी बीच नेशनल असेंबली को पता चल गया, है ना, लोगों को पता चल गया कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है ना। तो क्या हो गया कि नेशनल असेंबली ने वॉर स्टार्ट कर दी
है ना, जंग छेड़ दी किस किस के अपोज में, Austria प्रशिया and और Russia. ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में उसने वॉर स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वॉर जो है वो किस किस के बीच में हो रही थी, बिटवीन रिच एंड France, Poor. पुअर पीपल। अब इसमें क्या थे कि बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने। तो यहाँ के लुइस के जो प्रजा थी इन्होंने भी, है ना, बाकी के भी उन लोग ने, तो फिर भी किंग लोग तो कहीं से जीत ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पुअर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। और उसी टाइम पे एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी बना, कौन सा बना, डू यू नो द National नेम? Martial. मार्शियल, अजीब सा नाम है, ये वाले मार्शल सॉन्ग, मतलब ये ऐसे सॉन्ग भी बना वहाँ पे, तो बहुत इनोवेटिव लोग भी रहते हैं, यू नो ऑलरेडी, राइट। तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग बना दिया, है ना, जिससे क्या हुआ कि और ज़्यादा वो सुन के और ज़्यादा लोग रिवोल्टिंग हो गए, राइट। और ये वाला जो सॉन्ग था पैट्रियोटिक सॉन्ग, ये बहुत फेमस था, और ये बाद में क्या बन गया, National anthem. नेशनल एंथम, कहाँ का, France. France, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। बाद चल के ये नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। इसको कंपोज किसने किया था, कंपोज्ड बाय, यू नो द नेम? देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, रॉजर द लेज़ी, ठीक है, इसने कंपोज किया था। अब क्या हुआ कि चलो, ये किंग था, तो किंग कुछ नहीं कर पाया, नेशनल असेंबली ने उसको वापस दबा दिया, वॉर छेड़ दी, है ना, बहुत सारे लोग आ गए, है ना। अब क्या हुआ कि अब हम बात करेंगे क्लब के बारे में, पॉलिटिकल क्लब। तो डू यू नो द नेम ऑफ एनी क्लब? Jacobin Club, Jacobin. जैकोबिन तो मतलब सबसे ज़्यादा फेमस क्लब था और सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लब था, है ना, इसलिए इसलिए वहाँ पर जो था रोल ऑफ पॉलिटिकल क्लब हम लिखेंगे, है ना। तो एक बात बताओ, पॉलिटिकल क्लब कौन बनाता था, People. कौन, the रिच National रिच लोग के Assembly, प्योर लोग, रिच लोग के प्योर लोग, Poor. है ना। तो रिच नहीं, रिच सोसाइटी, रिच सोसाइटी के हाथ में होता था ना, क्योंकि वोटिंग राइट किसके हाथ में है, जो बिजनेस करते हैं, है ना, जो जो अर्न करते हैं उनके हाथ में है, राइट। तो जो पॉलिटिकल राइट जो थे वो रिच सोसाइटी के हाथ में थे, है ना। लेकिन जो पुअर लोग थे वो क्या थे, मतलब इस चीज से चिढ़े हुए थे, है ना। तो पुअर लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं भैया, अभी भी रेवोल्यूशन होना, है ना, अभी भी हमको रेवोल्यूशन करना है, नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ रिच लोग की सुनी जाए, रिच लोग ही बनाएंगे सब, है ना। तो जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो जैकोबिन क्लब था, है ना। इसमें कौन से लोग थे, इसमें पुअर लोग थे, सॉरी मैंने उसमें वो बोल दिया, है ना। तो रिच सोसाइटी जो थी उनको वोटिंग राइट्स था, तो उन्होंने बोला नहीं भैया, रेवोल्यूशन तो अभी चलना चाहिए, रेवोल्यूशन मस्ट गो ऑन, रेवोल्यूशन चलना चाहिए। तो जो पॉलिटिकल क्लब बना जैकोबिन, है ना, जैकोबिन को लीड कौन करता था, Maximilian Robespierre. राइट, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, दिस नेम यू हैव टू रिमेम्बर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। और इस क्लब में किस टाइप के लोग थे, Third estate. थर्ड एस्टेट के, है ना, जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन के जो लोग थे, है ना,
जैसे स्मॉल शॉपकीपर, पेंटर, है ना, और लेबर, ये वाले लोग थे, है ना। तो लीडर था हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और ये लोग क्या प्लान कर रहे थे जैकोबिन क्लब के, प्लानिंग एन अपराइजिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पेरिसन्स। ठीक है, अब ये लोग जो थे कंटिन्यू अपना रेवोल्यूशन चालू रखना चाहते थे अगेंस्ट होम, रिच पीपल जो कि रूल कर रहे थे नेशनल असेंबली में। ठीक है, लोग अभी भी शांत नहीं थे, है ना, उनको वो नहीं मिल रहा था जो चाहिए है ना। तो इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली के अगेंस्ट जाके जो पुअर लोग थे, जो जैकोबिन क्लब था, क्या किया इन्होंने, you know, इन्होंने क्या किया, जो गार्ड था किंग का, उसको उसने निपटा दिया, और किंग को क्या बना लिया, हॉस्टेज। हॉस्टेज, किडनैप कर लिया उसको, हॉस्टेज बना लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हॉस्टेज बना के फिर से क्या हुई, वोटिंग, है ना, फिर से वोटिंग हुई, फिर से इलेक्शंस हुए, राइट। और इलेक्शन कब हुए थे, किस डेट में हुए थे, 21 प्लस एज रिक्वायर्ड थी इलेक्शंस के लिए, और ये इलेक्शंस हुए थे 1972 में। ठीक है, तो जो इसके बाद फिर न्यू असेंबली क्रिएट हुई, नेशनल असेंबली गई और नई असेंबली आई। इस नई असेंबली का नाम पता है आपको? कन्वेक्शन। तो अब हुआ क्या कि जैकोबिन्स ने, पर लोगों ने नई असेंबली क्रिएट कर दी, है ना, फिर से इलेक्शंस करवा दिए। तो अब जो राजा था वो पूरी तरह से गया, है ना। तो क्या हो गया, अपने जो मोनार्की थी वो क्या हो गई, abolish the monarchy, राइट। जो मोनार्की थी वो पूरी तरह से गया, मतलब मोनार्की गई मतलब राजा गया, है ना, और राजा चला गया तो फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक। क्या बन गया, राइट, रिपब्लिक बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? मतलब यहाँ पर कोई एक राजा नहीं रूल कर रहा है, राइट। अब वो रिपब्लिक बन गया, वो लॉज के अकॉर्डिंग ही चलेगा, है ना। पहले तो क्या था, रिपब्लिक मोनार्की थी, है ना, तो उसमें राजा तो भी था, लेकिन अब राजा भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया, और क्वीन और किंग का एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16। ठीक है, अब आपको बताना है कि उस किंग लुइस को किस रीजन से एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, अब एग्जीक्यूट कर दिया था इनको पैलेस से, कब एग्जीक्यूट किया था, 21 जनवरी 1793 में। ओके, किंग लुइस को क्या कर दिया, निकाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, अब राजा नहीं है तो कोई ना कोई तो आएगा। अब हमने एक नाम लिया था, क्या नाम लिया था, मैक्सिमिलियन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर। तो जो नया रूलर है, अभी राजा नहीं है तो कोई ना कोई तो हाथ जमाएगा ना, राइट। तो जो नया रूलर आ गया, नॉट एज अ किंग, ओके,
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में रॉबेस्पियर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा नाम है ना। और जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, इसने क्या क्या किया, हुआ क्या कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, है ना, उसने जो भी उसके अगेंस्ट जाता था ना, तो उसको वो कोर्ट में गिल्टी प्रूफ करा के सजा दे देता था, सजाए मौत, ठीक है, सजाए मौत दे देता था। इसने एक मशीन बनवाई थी, वो कुछ ऐसी थी, आप लोगों ने देखी होगी शायद, यहाँ बीच में सर रखते थे और ऊपर से यहाँ से एक ये ब्लेड आती थी, खचा। इस मशीन का नाम क्या था, गुलेटिन। गुलेटिन मशीन से वो सजाए मौत दिया करता था, है ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना। इसने ये क्या चाहता था, ये चाहता था, ही वांटेड टू ब्रिंग इक्वालिटी, he wanted to bring equality। कीर्ति, आर यू देयर, आगे नहीं आई। सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज कोई एक रेट फिक्स हुआ, राइट, जैसे बनाना है, वो 40 रुपीज़ डजन है, तो वो 40 रुपीज़ डजन में ही सबको मिले, ठीक है, उनका प्राइस जो है वही रहेगा। कोई भी चीज़ है, ब्रेड है, ठीक है, तो उसका प्राइस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। जो वेजेस डिसाइड किए गए हैं, सपोज हमने 400 रुपीज़ पर डे डिसाइड किया है, तो हर सबको 400 ही मिलेगा, कोई कम करके नहीं दे सकता, राइट। तो उसने ये लागू कर दिया। और क्या किया उसने, जो मीट और ब्रेड थे, उनको राशन कर दिया, ठीक है, राशन में मिलने लगे, मीट और ब्रेड सबको मिलने लगा। पहले क्या था भाई, पुअर लोग को सिर्फ ब्रेड ही मुश्किल से मिल पाती थी, राइट, लेकिन अब सबको मिलने लगा, वो रिच हो या पुअर हो, है ना। तो क्वालिटी ब्रेड, क्वालिटी ब्रेड मतलब सबको सेम टाइप की ब्रेड ही मिलती थी, चाहे वो आप कितना अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीग्रेन मिल रहा है रिच पीपल को और सिंपल वाला मिल रहा है पुअर पीपल को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सबको इक्वली सब चीज़ें मिलती थी, है ना। और क्या, और क्या किया उसने, जो भी चर्च थे ना, चर्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेस एंड बैरक्स, ठीक है। और क्या किया इसने, कोई भी टाइटल नहीं था। क्या था कि फ्रांस में क्या था कि बड़े लोगों को अलग टाइटल देके, द किंग, है ना, द लॉर्ड, है ना, मिस्टर, तो कोई भी अब टाइटल नहीं था, सब इक्वालिटी हो गई थी सब में, ठीक है। तो ये सब किया किसने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes. ओके, कीर्ति इज नॉट देयर, ग्रेट। ये सब किया रॉबेस्पियर ने। अब भाई रॉबेस्पियर ने तो ये सब किया, अब अभी भी लोगों में, और किन लोगों में, किन लोगों को ये पसंद नहीं आया, बताओ। किन लोगों को ये सब चीजें पसंद नहीं आई, जबकि जब ये सारी चीजें उनके फेवर में हो रही थी, राइट। अब आप मुझे बताओ कि वोटिंग राइट अभी भी किसको नहीं थे, Women. Women's. राइट, वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थे, है ना। और उनके इतने सारे क्लब्स थे, लेकिन उनको फिर भी इग्नोर किया गया, है ना, इग्नोर किया गया, और उनको कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया कि जितने भी क्लब्स बनाए थे ना वुमेन्स ने, वो सारे हटवा दिए, है ना, बंद करवा दिए क्लब्स, और वुमेन्स को अरेस्ट करवा दिया,
है ना। उसने बोला भैया हम तो सब कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है तुमको रिवोल्ट करने की, अब क्या ज़रूरत है कुछ करने की, है ना। तो इसने सारे कर्ज वगैरह बंद करवा दिया, ये कर दिया। वोटिंग राइट जो थे अभी भी किसके पास थे, सिर्फ वोटिंग राइट्स किसके पास थे? The people above 25 years of age. Men above. प्रॉपर्टीयर्स के पास, ठीक है। हाँ तो वो तो था ही, लेकिन सारे जो प्रॉपर्टीयर्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनके ही पास था अभी भी वोटिंग राइट्स, है ना। तो हुआ क्या कि रॉबेस्पियर को फिर पकड़ा गया, उसको कन्विक्ट किया गया, है ना। रॉबेस्पियर was convicted by the court in जुलाई 1974। इसको अरेस्ट कर लिया और इसको क्या किया, इसने जो मशीन बनवाई थी ना गिलोटिन, है ना, तो उसी में इसका, अगर उस मशीन में करवाते हैं तो उसको एक प्रोसीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुलेशन, ठीक है। गुलेशन कर दिया गया इसको भी, रॉबेस्पियर भी गया, है ना। तो जो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का क्या हुआ, जैकोबिन क्लब बंद हो गया, राइट। अब क्या हुआ, अब फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, अगेन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का बर्न हुआ, ठीक है। अब इसमें वोटिंग राइट अभी भी उन्हीं के पास था, है ना, प्रॉपर्टीज के पास था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि दो टाइप के पावर्स थी यहाँ पर, कौन सी, डायरेक्टरी, और दूसरी कौन सी थी, Executive. नहीं, लेजिस्लेटिव, ठीक है। जिसमें क्या है कि भेदभाव ना हो, इसलिए जो बैलेंस, पावर को बैलेंस करने के लिए इन्होंने दो पावर्स क्रिएट करी, है ना। तो डायरेक्टरी जो थी, है ना, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स थे, है ना, और लेजिस्लेटिव थे, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या कि दोनों जो है बैलेंस नहीं हो पाए, दोनों क्लैश हो गई, है ना, बोथ क्लैश्ड एंड ब्रॉट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी होगा, राइट। दोनों लड़ पड़े, दोनों में इनस्टेबिलिटी हो गई, है ना। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि भैया लुईस 16 गया, जैकोबिन क्लब गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन वो भी गया, है ना। फिर आया इमेज में कौन, किसका राइज हुआ, राइज ऑफ Napoleon. मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, क्या नाम था उसका, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, बोनापार्ट जो भी बोलते हैं उसको। ये आ गया इमेज में। अब ये कौन था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, है ना। अब ये आ गया और फिर यहाँ से स्टार्टिंग हुई स्लेव ट्रेड की, ठीक है। देखो भाई, राजा नहीं था, कोई नहीं था, है ना। अब रॉबेस्पियर भी नहीं था, तो कोई ना कोई तो आएगा, है ना, कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, है ना। तो और जो स्लेव ट्रेड क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो पुअर जो पीपल होते हैं,
रिच पीपल जो है पुअर पीपल से काम करवाते हैं, तो बंदी बना के काम कराते हैं। और तो और रिच पीपल मेक वर्क फ्रॉम पुअर पीपल, बंदी बना के काम करवाते हैं। और भैया स्लेव ट्रेड का क्या मतलब है, वो जो अपने बंदे बना लिए ना उनको आप बेच भी देते हो तो फिर वो दूसरे के लिए काम करेंगे। तो ये ऐसा साइकिल स्टार्ट हो गया एक से दूसरे में, यहाँ से यूरोपियन सब ये चालू हो गया ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्टिंग सब देखेंगे। हमने अभी अभी तक क्या पढ़ा, अभी आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। No, sir. है ना, चलो अभी फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1774 में, किंग लुइस 16 आया, है ना, जो कि जिसने थ्रोन संभाला लेकिन वो उसके काबिल नहीं था स्टिल। फिर टैक्सेस क्राइसिस, पॉपुलेशन, ये सब हुआ। थर्ड स्टेट के ऊपर लोड आ गया, थर्ड स्टेट एंग्री हो गया, मिराबियो एबेसीज और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। 1789 में जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बेसिक नीड जो थी वो बढ़ गई थी, ब्रेड नहीं मिल रहा था लोगों को खाने, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था। फिर 14 जुलाई को जो था लोगों ने बास्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। रेवोल्यूशन रिवोल्टिंग पीपल रूलिंग स्टार्ट हो गई थी। 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट में मीराबियो ने जो नेशनल असेंबली को वो किया, है ना, अपने कुछ बेसिक जो राइट्स थे वो सामने आए। नेशनल असेंबली के राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू ओपिनियन, इक्वलिटी, है ना। तो जो पूरी पावर थी नेशनल असेंबली के पास थी। और इसको कैसे किया जाता है, मैंने एक चार्ट बनाया था, बताओ कौन कौन से 3 लोग होते थे, बोलो। सर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी, राइट। तो ये तीनों मिलके अपना जो था वो प्रॉपर रन करते थे, है ना। और इसी मीन वाइल क्या हुआ कि लुइस जो था उसने बाकी के किंग्स के साथ अपना कुछ राजनीति स्टार्ट कर दी कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, नेशनल असेंबली को आगे नहीं बढ़ने देना है, हमें इसको तोड़ना है, लोगों को वापस अपने कब्जे में लेना है और जो मोनार्की है जो वापस लेके आना है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे पुअर पीपल थे, उनको पता चल गया कि भैया ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने नेशनल असेंबली ने क्या किया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया जिसके साथ जो किंग लुइस था वो प्लान कर रहा था, उसके अगेंस्ट में वॉर छेड़ दी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें आगे थे, राइट। उसी टाइम पे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह लोग बहुत वो थे, क्रिएटिव थे, तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाया। उससे जो थे इस सॉन्ग से बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे, है ना, इन्फ्लुएंस होके वो भी वॉर में शामिल हो जाते थे, है ना। और फिर बाद में ये जो है नेशनल एंथम बन गया, है ना। रोजेट टेलेसी इसने कंपोज किया था ये, है ना। फिर पॉलिटिकल क्लब सामने आए, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बन जाते थे, कुछ रिच लोग बनाते थे, कुछ पुअर लोग बनाते थे, है ना। तो अभी भी जो था नेशनल असेंबली को रूल कौन कर रहा था, जो कि वोटिंग राइट्स किसको थे, अमीर लोगों के थे, है ना, जो कि रिच लोग थे जो अर्न करते थे उनको थे। तो लोग जो थे अभी भी खुश नहीं थे, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है कुछ अभी भी। तो जैकोबिन क्लब बना। जैकोबिन क्लब को लीड किसने किया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया था, है ना। इसमें जैकोबिन क्लब में कौन कौन था, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, पेंटर थे, लेबर थे, ये सब थे, है ना। तो जैकोबिन ने क्या किया कि किंग को पकड़ के लाए, उसके जो गार्ड को था निपटा दिया और किंग को हॉस्टेज बना दिया। और फिर से इलेक्शंस करवाए जिसमें 21 ईयर एज कर दी लिमिट। और ये इलेक्शंस क्या हुए थे 1972 में। तो नेशनल असेंबली जो थी उसने क्या कर दिया, मोनार्की न्यू असेंबली जो थी उसने क्या किया, मोनार्की को डिमोलिश कर दिया, है ना। मोनार्की पूरी तरह से खत्म हो गई, नेशनल असेंबली भी गई क्योंकि इलेक्शंस हो गए थे, तो नई असेंबली आ गई। तो नेशनल असेंबली हैज गॉन, मोनार्की इज गॉन, लुई 16 गॉन। तो फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बन गया,
रिपब्लिक बन गया और एग्जीक्यूशन कर दिया लुइस 16 का 21 जनवरी 1793 में। तो फिर न्यू जो रूलर था वो कौन हो गया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आ गया। इसने क्या किया कि एक गुलिटिन मशीन बनाई थी। जो भी इसके अगेंस्ट जाता था वो कोर्ट में समहाउ गिल्टी प्रूव करा के उसको सजाए मौत देता था। ठीक है, कि कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं आता था। ठीक है, और इसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे ही वांटेड टू ब्रिंग इक्वालिटी, सब में इक्वालिटी लेके आया, है ना। सब जो प्राइजेस थे, वेजेस थे, उनको फिक्स कर दिया। कोई भी अपने मनमानी से नहीं बढ़ा सकता था। सबको इक्वालिटी में, मतलब मीट और ब्रेड सब बराबर मिलता था सबको, है ना। जो भी चर्च थे, है ना, वो ऑफिसेस और बैरक में कन्वर्ट हो गए, है ना। कोई भी किसी को मतलब यहाँ पर ऊंची जाति है, छोटी जाति, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। लेकिन अभी भी कौन नाखुश था? जो वुमेन्स थी, है ना, जिनको वोटिंग राइट नहीं था, जो पुअर पीपल थे जिनको वोटिंग राइट नहीं था, भले ही वो मैन क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो नहीं अर्न कर रहा है दैट मीन्स ही डोंट हैव वोटिंग राइट, राइट। तो वोटिंग राइट अभी भी प्रॉपर्टीयर्स के पास थे। रॉबेस्पियर ने क्या किया कि जो वुमेन जो क्लब्स बनाए थे, उनका पूरे क्लब्स बंद करवा दिए। कितने क्लब्स थे वुमेन्स के? अप्रॉक्स 16 क्लब थे, उसने सारे बंद करवा दिए और वुमेन्स को अरेस्ट करवा दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ कि कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्टेड घोषित कर दिया रॉबेस्पियर को, और जुलाई से 1974 में उसकी ही बनाई मशीन में, गुलेटिन में गुलेशन कर दिया, है ना, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब रॉबेस्पियर भी गया। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन नया बन रहा था, तो उसमें दो पावर्स में डिवाइड कर दिया, डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव, है ना। डायरेक्टरी में सारे एग्जीक्यूटिव थे, लेजिस्लेटिव में जो थे वही थे। बट क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से क्लैश होकर लड़ पड़े दोनों, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई तो कैसे चलेगा सब? तो फिर इसी से राइज हुआ कौन? मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई। और कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आ गया और इसने चालू कर दिया। और इसी टाइम पे फिर स्लेव ट्रेड भी चल रहा था। जो अमीर लोग थे, है ना, वो पुअर पीपल से काम करवाते थे, दैट टू मतलब उनको बंदी बना के, ना, कोई लेबर नहीं मिलता था, खाने बस मिलता था, और फिर उन्हीं को वो एक्सपोर्ट कर देते थे। मतलब जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूँ इंडिया में, मैंने क्या किया कि कुछ गरीब लोगों को उठाया, थोड़ा उनसे काम करवाया, स्किल करवाया, है ना, और उनको बंदी बना लिया कि अब ये काम कर सकता है, राइट। अब जैसे अमेरिका को चाहिए वो काम करने वाले लोग, है ना, फ्री में चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पैसे लिए उनसे और मैंने ये इन स्लेव्स को ट्रेड कर दिया, उनको बेच दिया। ठीक है, उनने किसी और को बेच दिया। तो ऐसे करके ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डू यू हैव एनी Yes. डाउट्स? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब आप लोग अपने डाउट्स लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे कि क्या नहीं समझ में आया, कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सारे क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है,